Okay, sorry. Be honest while answering your interviews. Uh, if you don't know any answer to the question, like कोई question पूछा गया ना, you're not aware of that answer, you should always say कि sir, right now I haven't heard of it, but I will search about it. You shouldn't, मतलब आप जब भी आंसर दो, your answer should be in optimistic way, एक positive way में होना चाहिए, उसको negative way में कभी मत दो कि no sir I haven't heard of it या I don't know about this. जब आप ये लाइन बोल देते हो वहीं पे इंटरव्यू का लगता है कि नहीं, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड या रॉन्ग अप्रोच. we always we always say that we are keen to learn. Learning is something which we will always do till we grow. Right? Learning is something that will never stop. You can learn anything new. So you should always opt for an attitude जो आपके लिए advantage हो when you go for an interview. Okay. नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई सेड कि हम अपीयरेंस तो चेक करते ही करते हैं जब कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है, साथ साथ हम उसका बॉडी लैंग्वेज भी जज करते हैं. बॉडी लैंग्वेज इज लाइक आप कैसे सीट चेयर पे बैठे हो. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू, इफ द पर्सन हैजंट सेड टू सिट ऑन द चेयर, डोंट सिट डायरेक्टली. ask them, sir, can I sit, or sir, may I sit. You should always ask them. 90% of the cases, always the interviewer always say, "Please have a seat." But if he doesn't say it, if maybe it can be a he's testing you or he's judging you on some point. So you should always be like, you can always say, "So can I sit? Yeah, may I sit?" You don't need to stand. Okay. So your posture while you're sitting should be erect. आप एकदम सीधे बैठो, चेयर पे लीन ना करो या स्लाउच ना करो. कुछ लोग होते हैं ना जो चेयर पे एकदम लेट जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ करेक्ट बॉडी posture व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू. यू शुडंट स्लाउच. आप काफी टेंस भी नहीं लगना चाहिए, मतलब आप बैठ गए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओहो बहुत डरा हुआ है या बहुत स्टिफ है वो. यू शुड maintain a correct body posture when you are sitting. And next is your eye contact. Whenever you speak, whenever you are giving an answer to the questions asked, you should always maintain an eye contact. When I say eye contact, we say कि हम एक eye contact we can maintain, but you shouldn't continuous stare. Like while you're giving your answer, you're continuously staring to that person. आपको घूरना नहीं है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है. इफ यू स्टार्ट स्टेयरिंग, दैट गोज अगेंस्ट यू. सो आप एक पर्टिकुलर, मतलब एक correct amount of eye contact you should always maintain. When you are giving the answers, you should always maintain the eye contact with the person who has asked you the question. अवॉइड यूजिंग हैंड मूवमेंट्स. जब हम इंटरव्यू देते, काफी लोगों की आदत होती है कि जब वो बात करते तो वो हाथ ऐसे आगे पीछे, दे यूज लॉट ऑफ हैंड मूवमेंट्स आर देयर व्हेन दे टॉक. सो वो अवॉइड करना चाहिए. अपना फेशियल एक्सप्रेशन हमें नॉर्मल रखना चाहिए, ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगना चाहिए, ज्यादा नर्वसनेस नहीं लगनी चाहिए, ज्यादा डरे हुए नहीं लगने चाहिए. वी शुड कीप अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. और एकदम रूड भी नहीं लगना चाहिए कि स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, एकदम ऐसे बैठे हैं. you should always have a you should always smile. You can have a little smile, but ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम हंसते रहो. So depending upon the situation, you should control your body language and your movements. uh, Next, we, like I said, dressing for an interview. तो कैस क्या क्या what are the dresses that you can wear? For the boys, we have like a formal wear. We can have a suit. If not suit, we can have trousers, shirt, tie. Tie depends. If you want to have a tie, you can have a tie. What are the do's and don'ts? No earrings. Some boys have a habit of wearing an earring, but you shouldn't wear at that time of interview. You should have a tie, but tie का अगर पैटर्न बहुत ज्यादा लाउड है, you should एक subtle amount of attire should be prepared while going for an interview. काफी ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, कलर ज्यादा डार्क ना यूज करें. कंजर्वेटिव डार्क शूज रखें आप. शूज एक मतलब हील्स वाले नहीं होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा नॉइस होते हैं वो नहीं होने चाहिए. एक करेक्ट अमाउंट ऑफ जेल लगाना बालों में. इफ यू आर पुटिंग अ जेल, सो आप ज्यादा मत लगाओ. यू डोंट नीड टू हैव अ फैंसी हेयर स्टाइल. आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपको एक फॉर्मल अटायर रखना है. बियर्ड वगैरह ट्रिम्ड होनी चाहिए. अवॉइड यूजिंग जीन्स. Avoid using these distracting patterns as a stripe wale, because these distract the interviewer. No rolled up pants, and don't forget to wear your socks. So this is kind of a formal attire which is preferred for all the boys who are going for an interview.
For girls, we can have a formal suit wear as well as for Indian. Don't get nervous that कि अरे मैम हम लोग तो स्कर्ट या trousers नहीं पहनते. So जो skirt and trousers में uncomfortable है, you can wear normal Indian kurta. Kurta pajama is also suitable for interviews. But yes, the color of the suit should be light. You shouldn't wear something dark like red or maroon. No, you should always go for subtle colors, which are very light in colors. Then you can have avoid wearing a lot of accessories. Like हमारा होता है कि चूड़ियां भी पहन ली, earrings बड़े बड़े पहन लिए, तो वो नहीं करना. You should wear a small piece of earring. For hair, you can keep it open, but keep in a way that it doesn't distract you. Jesse, for example, I remember there was a case when at our college, one girl was giving went for an interview and she had a highlight on her hair. So her interview went very well, but she was not selected. The reason of her not selection was because of that highlight in her hair, and her hair were open. She was always being distracted, and the interviewer who was taking the questions was always distracted by her hair. उसके बाल उनको distract कर रहे थे, तो उन्होंने उसको select नहीं किया इस reason से. So you should always try to have a nice formal wear whenever you go for an interview. आप अपने आप को properly dress up करें. Your hair should not come in your way while you're talking. So that if you're having your open hair, वो बार बार आपके चेहरे पे नहीं आने चाहिए. या if you're having कुछ भी किसी भी तरह से आपका फेस या आपका बॉडी डिस्ट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए. So you should always have no bright color patterns. You cannot wear capris, you cannot wear jeans, you cannot wear jeans and top. You cannot wear open toe shoes. हम लोग हमेशा बोलते हैं bellies are suitable for girls. Whenever they go for an interview, we always prefer black bellies. That is better for you. Okay. So, like I've already told you कि ये do's and don'ts हैं of how to dress for an interview. Next we have do's and don'ts of an interview. आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक इंटरव्यू में. सबसे पहला important point है कि आपको जो करना है वो है practice. Practice a lot of questions and how to give your answers, how to maintain your body language, how to avoid using your hands. ये आपको बहुत ज़्यादा practice करनी होगी, तभी आप कर पाओगे. ड्रेस पार्ट हमेशा आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हो उससे पहले ही आप अपने कपड़ा तैयार करके रख लो. वट एवर यू हैव डिसाइडेड टू वेयर, यू शुड ऑलरेडी इट शुड बी आयरन. कोई डार्क या ऐसा कलर यूज नहीं होना चाहिए जो आई को कुछ कलर्स होते हैं जो हम लोग कहते हैं आँख को चुभते हैं, वैसा कोई कलर कभी ऑप्ट मत करना. यू कैन वेयर एनी सटल कलर्स. आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बैठते हो. थर्ड, आप अपनी कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके बारे में पूरा होमवर्क कर लो, रिसर्च कर लो. एंड डू आस्क क्वेश्चंस. एकदम एंड में एक इंटरव्यू आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई डाउट है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कोई डाउट है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज आस्क इट. ऐसे डरना नहीं कि यार हम क्या पूछे, कुछ नहीं है, कहीं अगर हमने पूछ लिया तो वो हमें गलत ना समझ ले. सो यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट. अब आप इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछोगे दैट विल ऑलवेज गो अगेंस्ट यू. सो यू शुड ऑलवेज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस. लाइक जैसे आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इंटरव्यू, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट. तो ये जेन्युइन क्वेश्चंस है. नेक्स्ट है व्हाट आर द डोंट्स, जो आपको नहीं करना है. डोंट एक्ट नर्वस. जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, आई नो जिनके भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू या सेकंड टाइम इंटरव्यू, वी ऑलवेज गेट नर्वस. हम डर जाते हैं कि वो क्या पूछने वाले हैं या क्या पूछेंगे, मैं भूल तो नहीं जाऊंगी. सो ऑलवेज ट्राई कि आप नर्वस ना रहें. यू श्योर, बिकॉज अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नर्वसनेस ऑलवेज अपने आप ही वो कम हो जाएगी. तो सबसे इम्पोर्टेंट है डोंट एक्ट नर्वसनेस. मतलब आप कभी घबराए हो जाते हैं, तो कुछ लोग की आदत होती है जब वो घबरा जाते हैं, दे आर नर्वस, दे स्टार्ट टॉकिंग अ लॉट, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है. डोंट रैम्बल. आप अपनी तरफ से ज्यादा मत बोलिए. जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही आंसर दीजिए. आप जरूरी नहीं है कुछ लोग की आदत है वो चीजें एग्जैजरेट करने लगते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताने लगता है. दैट इज नॉट नीडेड. वहाँ पे इंटरव्यू इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता चल जाता है कि वेन यू आप कब सच बोल रहे हो और कब आप झूठ बोल रहे हो. सो डोंट रैम्बल, आप कुछ भी मत बोलो.
ज्यादा लंबा मत बोलो. if someone is asking like tell me something about yourself, don't prepare an answer of a page. like एक पेज का आंसर नहीं होना चाहिए आपका कि आप बोलते जा रहे हो. you should prepare a point to point answer for it. डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू. जब भी आप इंटरव्यू आपका खत्म हो जाए, ऑलवेज रिमेम्बर टू से थैंक यू टू द इंटरव्यूअर. थैंक यू सर. ऑलवेज शेक हैंड. एंड हाँ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू शुड ऑलवेज डोंट रिएक्ट योर सेल्फ. यू शुड एक्ट वेन द इंटरव्यूअर इज डूइंग. इफ अगर इंटरव्यूअर अपना हाथ बढ़ा रहा है आगे, तब आप हैंडशेक करेंगे. हाँ, at the end when you go for a thank you, then at that time you can offer your hand for handshake and say thank you sir, thank you so much for your time. So never forget to say thank you. Now, जो जनरल डिस्क्रिप्ट डूज एंड डोंट्स क्या है, ऑलवेज अपीयर बिफोर टाइम. इफ योर टाइम फॉर द इंटरव्यू इज सपोज 11 a.m., try to reach the interview place at 10:30 a.m. Maximum you should be at least half an hour to 15 minutes early when you go for an interview. You don't want the panel or interview to wait for you for the interview. Next is dress appropriately. Um, आप एक प्रॉपर ड्रेस पहन के जाओ, एक फॉर्मल वेयर पहन के जाओ. रिमेंबर योर अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि जब आप सबसे पहले, आपको वो सबसे पहले आपको देखेगा ही, आपको देख के वो जज करेगा. तो योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट. And when I say appearance for girls especially, try to put a subtle makeup. If you're putting makeup on your face, your makeup should not be very heavy or very loud that the interviewer can easily identify you're putting a makeup. It should be very natural, very subtle. Zyada heavy makeup is not allowed. थर्ड इज एक्ट अप्रोप्रिएटली. जैसे मैंने बोला, आपको इंटरव्यूअर की लीड फॉलो करनी है. अगर वो हाथ के लिए हैंडशेक के लिए हाथ आगे कर रहा है, देन यू हैव टू हैंड शेक योर हैंड. अगर आपको लग रहा है आप अगर चार लोग बैठे, तो आपको सिर्फ एक से हैंडशेक नहीं करना है, आपको चारों से करना पड़ेगा. आप किसी को अपेंड नहीं कर सकते हो. आप इंटरव्यू के साथ एंगेज हो. एंगेज कैसे हो सकते हो? स्माइल, यू कैन गिव स्माइल टुवर्ड्स द इंटरव्यू, एक आई कांटेक्ट बना के, एक रैपो बिल्ड करके. जो भी क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं, आप उसका वैसे ही आंसर दो. इररेलेवेंट आंसर्स आप मत यूज करो. लॉजिक, ट्राई टू बी एज लॉजिकल एज पॉसिबल. डोंट्स में क्या है, आप ज्यादा जल्दी डरो नहीं कि अगर आपने कोई झूठ बोल रहा है तो फिर आप पकड़े जाओगे, या ज्यादा मतलब ज्यादा ओवर एक्साइटेड यू शुडंट बी. ओवर फेमिलियर होने का भी ट्राई मत करो कि अच्छा यू आर फ्रॉम दैट सिटी, मैं भी वहीं से था. तो ज्यादा फेमिलियरिटी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है. वो सिर्फ आपको एज अ एम्प्लॉय देखते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप इंटरव्यूज देते हो. जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं एक इंटरव्यू के टाइम में, वो क्या होती है कि हम कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाते. कल अगर मेरा किसी कंपनी में इंटरव्यू है, और आज सुबह मतलब आज रात तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा उस कंपनी के बारे में, उसकी जीडी नहीं पढ़ी, उस कंपनी का प्रोफाइल नहीं पढ़ा, तो ये मेरे लिए बहुत अगेंस्ट चला जाएगा. क्योंकि एक इंटरव्यू के टाइम में वो आपसे जरूर पूछेगा कि हैव यू हर्ड अबाउट योर आवर ऑर्गेनाइजेशन, from where did you heard about our organization, uh, uh, anything related to the organization he can ask you. Always prepare yourself. अगर आप even not related to the organization, for yourself, अगर आप अपने question answers prepare करके नहीं गए हो, तो at that time आप on the spot questions नहीं बना पाओगे इतनी जल्दी. ड्रेस इन अप्रोप्रिएटली, हमेशा हमें ड्रेस प्रॉपरली होना है. ऐसा नहीं है कि हम सो के उठ के चले जा रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. पुअर कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जज होती है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल. आप कितने अच्छे से बात कर लेते हो, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो आपका फोन ऑफ नहीं होना चाहिए. इफ यू आर गिविंग योर नंबर शुड नॉट बी ऑफ. आपका नंबर रीचेबल होना चाहिए. आप उतनी ही बात करो जितना आपसे पूछा जाए. आप कोई भी इलॉजिकल फैक्ट्स या कुछ भी, जैसे आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपने खुद से कोई फैक्ट बना दिया और आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे ही होता है, सो ये गलत हो जाएगा. अगर आप से कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर नहीं पता, यू कैन एडमिट इट डायरेक्टली कि आई करेंटली आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट.
बट आई विल सर्च अबाउट इट। अब उसकी जगह आपको लगा कि नहीं, अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, तो आप कुछ भी आंसर बना दो, वो गलत पड़ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उसका आंसर आप खुद से मत बताओ या उस गलत आंसर मत दो। कभी भी अगर आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं एंड यू आर स्विचिंग योर ऑर्गेनाइजेशन या किसी नई कंपनी में जॉब कर रहे हो, ऑलवेज रिमेम्बर आप अपनी प्रीवियस कंपनी को कभी भी दूसरे के सामने बुरा नहीं बना सकते हो। आप इवन दो अगर आपकी पिछली कंपनीज में कोई लड़ाई हुई हो, कोई इशू रहा हो, यू कैन नॉट टेल द न्यू कंपनी कि आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कुछ उनको बुरा नहीं बोल सकते हो। You should never badmouth your past employer. You should always say कि my last organization was this. I had a great working experience. आप उनको कभी भी गलत नहीं बताओगे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेट डाउन नहीं करोगे। uh, जब एक बार इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आप फॉलो अप करना भूलो नहीं। आप उनसे फॉलो अप लो कि सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट, या हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द रिजल्ट। आप एक फॉलो अप मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि आपने इंटरव्यू दे दिया, आप हो गया काम, वो खुद ही रिजल्ट बताएंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आप लोग का। नाउ, एक सक्सेसफुल इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कब से स्टैब्लिश हुआ है वो पता होना चाहिए। वहाँ के जो मेन हेड्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए। और जब आपके पास इंटरव्यू का मेल आता है तो उसमें एचआर का नाम लिखा होता है या इंटरव्यूअर का नाम लिखा होता है। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट नेम, क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपको उनका नाम बताना पड़ेगा कि आपको किसने बुलाया है इंटरव्यू के लिए। तो उनका नाम आप एक जगह नोट डाउन कर लो। टाइम से पहले पहुंच जाओ एक इंटरव्यू देने के लिए। मतलब जल्दी पहुंचना है, मतलब इतना भी जल्दी नहीं, जैसे 11 बजे का इंटरव्यू है तो आप 9 बजे से बैठ गए हो, 11 बजे का इंटरव्यू है तो आप 10:30 तक पहुंच जाओ। दैट इज, समझ में आता है। बी कर्टियस। आप जितने लोग, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने भी लोगों से मिलो, चाहे वो आपका बगल में बैठा कलीग हो या वहाँ कोई आपको पानी देने आया हो या वहाँ का रिसेप्शनिस्ट हो, कोई भी हो, XYZ, आपको उनसे अच्छे से बात करनी है। बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि दे विल टेस्ट यू। काफी लोग मैंने देखा है कि बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर आपको 11 बजे का इंटरव्यू दे बुलाया है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका इंटरव्यू एग्जैक्ट 11 पे ले। वी में टेस्ट यू बाय मेकिंग यू वेट। वो आपको वेट करा सकते हैं। आपका इंटरव्यू कहो तो वो शाम को 5 बजे ले, और कहो तो उस दिन ले भी नहीं और नेक्स्ट डे बुलाएं आपको। सो ये सब क्या है वो, बट उन उस मैटर ऑफ टाइम में देर इज सम कंपनीज व्हाट डू दे डू, दे हैव अ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड। तो वो आपके बिहेवियर को चेक करते रहते हैं, आप मॉनिटर करते रहते हैं कि आप अपने बगल वाले से कैसे बात कर रहे हो या वहाँ के स्टाफ से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाओ। एक टाइम अगर आपको दिया गया है तो डोंट एक्सपेक्ट कि उसी टाइम पे हो सकता है, कभी कभार हो भी जाएगा और कई बार नहीं भी हो पाएगा। सो डोंट लूज योर पेशेंस। क्या क्या लेके जाना है, व्हाट टू ब्रिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी लाइक आपको जो भी चीजें पूछनी है या याद करनी है, वो एक आप नोट डाउन कर लो। नेम्स नोट डाउन कर लो अगर याद नहीं है। एक पेन रख लो, इट कैन बी एदर ब्लैक और ब्लू पेन। आईडी रखो, आधार कार्ड और वोटर आईडी, एनी आईडी प्रूफ। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ रेफरेंस, थ्रू अ रेफरेंस, तो एक रेफरेंस का वो होना चाहिए। वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, सेवरल कॉपीज होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की। ओके। सो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि एक इंटरव्यू में एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकता है? हमें एक गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, स्माइल हमेशा मेंटेन करनी है हमें, मतलब हमेशा हंसते हुए नहीं रहना है। सिंपल नॉर्मल स्माइल शुड ऑलवेज बी देयर ऑन योर फेस। एक बॉडी लैंग्वेज ओपन रहना चाहिए, काफी क्लोज नहीं होना चाहिए या एकदम एकदम डरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका फेस भी एकदम स्टिफ है, आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे, एक्सप्रेशन लेस नहीं होना चाहिए। स्लाउच नहीं करना चाहिए ज्यादा, मतलब ऐसे लेट लेट ना जाओ चेयर पे, या काफी ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट होके ना बैठो। आपकी आईज जो है, आप ट्राई करो कि उसके मतलब एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाओ। इंगेज रखो, मतलब आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो आप मेक श्योर करो कि सामने वाले को लगे कि आप उन मतलब बात करने में इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोफाइल के लिए। और जब आप बात करो, उससे काफी लोग को डर होता है तो वो आँख मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं और देखने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो नीचे देख के आंसर्स देते हैं। सो
मतलब अगर मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं आपसे ऐसे करके बात कर रही हूँ कि यस सर माय नेम इज सोनाली श्रीवास्तव, आई हैव डन दिस इन दिस, तो वो क्या सोचेगा कि सामने वाला तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ प्रॉपर आई कांटेक्ट। आप जब बात करो अपना एक बॉडी लैंग्वेज एक अच्छा मेंटेन करो। जब भी आप आंसर दो तो आप उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। अगर आपसे सामने वाले ने पूछा है तो आप ए ने पूछा है सपोज, तो आप ए को देख के आंसर दो। अगर ए ने पूछा और आप बी को देख के आंसर दे रहे हो तो वो गलत होगा। अपने आप को काम रखो। अगर आपसे आपको पानी का ग्लास ऑफर हुआ है, यू इफ यू वांट यू कैन टेक इट। ऐसा नहीं है कि आप और अगर आप पानी पी रहे हो तो एकदम जल्दी जल्दी नहीं पियो कि ऐसा लगना चाहिए कि भाई बहुत थका हुआ है या बहुत डरा हुआ है। हैंडशेक प्रैक्टिस करो। जब हम कहते हैं कि आप लोग सोचते हैं हैंडशेक तक प्रैक्टिस करना, हैंडशेक में बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप लाइट हैंडशेक कर रहे हैं, एक होता है कि एक फर्म हैंडशेक होता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली जितने लड़के होते हैं, you should always do a firm handshake. फर्म हैंडशेक मतलब थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ता है, बट इतना भी नहीं कि आप सामने वाले का हाथ तोड़ दो। ठीक है। सो प्रैक्टिस योर हैंडशेक वेल। ना इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, गुड हैंडशेक जैसे मैंने बोला। इंटरव्यूअर का नेम आप ढंग से प्रोनाउंस करो। ये पता नहीं कि अगर आप जैसे सपोज इंटरव्यूअर का नाम है कृमिशा, तो ये थोड़ा टिपिकल नाम है, या शैतांशु, ये काफी टिपिकल नेम होते हैं, बट आप उनको ढंग से प्रोनाउंस करो। मिस्टर या एड्रेस करना होता है जैसे मिस्टर शैतांशु या मिस कृमिशा, ऐसे करके प्रोनाउंस करो। ऐसे नहीं कहोगे कि आई हैव टू मीट कृमिशा या आई एम गोइंग टू मीट शैतांशु। यू शुड ऑलवेज एड्रेस दैट पर्सन प्रॉपरली। हमेशा इंटरव्यू में ध्यान रखो कि आप इंटरव्यूअर को ज्यादा चांस दो बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू में आप बोलते जा रहे हो और सामने वाला सुनता जा रहा है। एक आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्माइल, एक कॉन्फिडेंट पोस्चर। जितने भी आंसर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमेशा कीप योर आंसर्स पॉजिटिव। आपका सारा आंसर, इवन आपको नहीं आता है कोई चीज या आपको कुछ नहीं पता है, तो आप उस आंसर को भी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके बोलो कि सर राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, या राइट नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ गुड आंसर। ऐसे करके एंथुजियाज्म दिखाओ कि हाँ मतलब हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, मैं इस जॉब के लिए आई हूँ तो मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे सब पता है। या उतनी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ। इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, वो क्या पूछना चाह रहा है, एंड अगर आपसे अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हमेशा आंसर करो। सी नर्वसनेस में काफी लोग क्या करते हैं, वो बार बार सॉरी बोलते रहते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, जिससे लोग भूल जाते हैं कभी कोई चीजें। अगर आप चीजें रट के जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर आप कहीं अटके तो फिर आप अटक जाते हो। तो ऑलवेज मेंटेन अ काम पोस्चर। आप थोड़ा सा नेचुरल बिहेव करो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी चीजें वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। अम, आप कई बार होता है कि आपको नर्वस देख के बाकी लोग भी घबरा सकते हैं, या बाकी लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये तो बहुत नर्वस है, ये तो नहीं निकाल पाएगी, एक कंपटीशन कम हो गया। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। ज्यादा ओवर टॉकेटिव मत रहो, बी स्पेसिफिक। जितना पूछा जाए उतना आंसर रखो। और ज्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग घबराते हैं तो हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं, वी स्टार्ट शेकिंग आवर लेग्स, वी स्टार्ट शेकिंग आवर बॉडी। वो नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर गिविंग ऑफ एन ईयर इंटरव्यू, आप भूल जाओ कि आप डरे। भाई इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो आप सिलेक्ट हो गए या आप रिजेक्ट हो गए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन कि मुझे सिलेक्ट होना है तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तो अपनी नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिहर्स करोगे, उतनी जल्दी आपकी नर्वसनेस दूर होगी। नेक्स्ट है क्लोजिंग द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तब अगर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन या यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू अस, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप एक इंटरव्यू के एंड में आप ये बोल सकते हो, आई होप सर आई डिड वेल, इफ आई हैड सेड समथिंग रॉन्ग प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। ऐसे करके बोल सकते हो अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत बोल दिया है। जब भी इंटरव्यू का एंड होता है या खत्म होता है, बाहर निकलते हो उससे पहले ऑलवेज हैव अ गुड इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ के जाओ। हैव अ स्माइल एंड हैव अ फर्म हैंडशेक। Now the last is कि commonly asked interview questions होते हैं। For the next session, जब भी we'll conduct the next session, what we'll do is ये जो common interview questions है, we'll have a online interview of all the students.
We can ask anyone to switch on their mics and videos, and we you need to prepare these questions. Like, tell me about yourself. These are the basic interview questions which all the organizations ask. So first is tell me about yourself, या tell me something about yourself, या introduce yourself. ये तीनों एक ही चीज है. या नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में बच्चे स्ट्रेंथ मतलब ये होनी चाहिए कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन वे में अपनी स्ट्रेंथ बताओ. लाइक आपकी क्वालिटीज क्या है, आर यू पेशेंट, या आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं. ये सब होती हैं स्ट्रेंथ आपकी. लाइक आई एम वेरी काम, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई ऑलवेज अराइव ऑन टाइम. या वीकनेस क्या है, वीकनेस में भी आप अपनी कमियां नहीं बता सकते हो. वीकनेस में भी आपको ऐसा बताना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ लगे. जैसे कि मेरी आदत है, या माई वीकनेस इज दैट आई नीड टू कंप्लीट माई वर्क नो मैटर हाउ मच टाइम डज इट टेक. या फिर आई एम वेरी इमोशनल. ये सारी हो गई आपकी वीकनेस. मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे मैं बीमार रहता हूँ, या मुझे इस एनिमल से डर लगता है. ये वीकनेस नहीं होती है. वीकनेस होती है कि आपकी क्वालिटीज में ही कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी वीकनेस बन जाए. जैसे यू कैन सम किसी का, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो सबको मना नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज योर वीकनेस कि आपसे कोई कुछ भी पूछेगा आप सबको हाँ कर देते हो. तो दिस इज वन ऑफ योर वीकनेस. ऐसे बताना है. देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम 5 years नाउ. आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो. आप सीधे ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैं आपकी जगह पे अपने आप को देखता हूँ, या मैं आई वांट टू बिकम अ मैनेजर, आई वांट टू टेक अप योर सीट. ये नहीं होना चाहिए. ये होगा कि सर आफ्टर 5 years आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू ग्रो अ लॉट, लर्न अ लॉट. ऐसे करके होना चाहिए. Then we have, when did you leave your last organization? What experience do you have in this field? Do you consider yourself successful? What do you know about this organization? What have you done to improve your knowledge? Why do you want to work for this organization? Do you know anyone who works for? And there is one more, salary expectations. कभी भी आप सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाए आप अमाउंट नहीं बताओगे. यू शुडंट से कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 20,000, आई एम एक्सपेक्टिंग 30,000. यू शुड ऑलवेज से कि सर salary expectation would be depending, like whatever it is going round the clock. मतलब अभी जो सैलरी चल रहा है, जिस उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है, आई एम ओके विद इट. ऐसे करके. Okay, so these were the questions. Yeah, these were the tips or tricks which you can use while giving an interview. So this was it from my end. If you have any doubt, you can ask. आपको कोई questions है, आप पूछ सकते हैं. I have a lot of message. Okay, someone asked. Okay, respected ma'am, my question is for you. What are your next important things which you can see in a next role? How can we handle this type of questions? Okay, so in these type of questions, what you're expected to answer is, uh, what are your next important things which you can see next, which you can see in a next role? बेसिकली इसमें आप यू कैन टेल समथिंग लाइक आपने कुछ नया स्किल सीखी हो, या कोई एक नया इम्पोर्टेंट चीज हो. मतलब आप कैसे अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो, आप कैसे अपने रोल को एक नया, मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन न्यू रोल के लिए जा रहे हो, सो आप उसके लिए आप क्या रेडी किया है आपने, हाउ मच प्रिपेयर्ड आर यू. या जो कोई भी, जैसे आपने सपोज कर लो अभी आप करेंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हो, या एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनी वर्क कर रहे हो, तो आपका जो नेक्स्ट रोल होगा वुड बी मैनेजर, वुड बी अ टीएल प्रोफाइल. और उसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स की नीड होगी, आपको वो उनको बताना पड़ेगा. लाइक मेरे रोल के अकॉर्डिंग से करेंटली मैं अभी सपोज कर लो आई एम ए सॉफ्टवेयर ट्रेनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी. सो फॉर व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट रोल एज अ टीएल और एज अ एग्जीक्यूटिव, माई स्किल्स वुड बी डिफरेंट. मुझे उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होगी. आई वुड बी हैंडलिंग अ टीम, तो मुझे टीम बिल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए. तो इस टाइप के आप कर सकते हो.
Okay, next is Nilesh. He asks, why are you most suitable for this job? Why are you most suitable for this job? Yeah, why do you want to join our organization? Yeah, why do you prefer this role? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इसका आंसर यही हो सकता है कि सर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको एक जेडी भेजा होगा, आप उससे रिलेटेड बोल सकते हो कि सर एज फार एज फॉर द जॉब टाइटल इज कंसर्न, आई थिंक आई एम द करेक्ट कैंडिडेट फॉर इट because I have most of the qualities. I have like जो भी उसमें qualifications होंगी, आप बोलोगे कि yes I have all the qualifications. I have and I'm confident कि मैं ये role ले पाऊंगा. I'm confident I have experience in this field. Yeah, I have done my internship in this field, so I know the technical terms as well as how to uh, deal with in a different situation. ये सारे क्वेश्चंस मतलब इस तरह से आप आंसर कर सकते हो. आपको अपनी एक तरह से उसमें स्ट्रेंथ बतानी होती है कि भाई मेरी अंदर ये स्ट्रेंथ है, इस वजह से आपको मुझे इस जो जॉब के लिए चूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज, यू आर अ फ्रेशर विद टायर 3 कॉलेज, व्हाई शुड वी हायर यू? And to be honest, when you go for an interview, the college doesn't matter. It doesn't matter कि आप IIT के हो, IIM के हो या विजन के हो. आई नो कि IIT IIM का एक वो वेट बढ़ जाता है, बट व्हेन यू कंपेयर एज अ इंडिविजुअल, जब आप डिफरेंट अपने कॉलेजेस के में compete करते हो, चाहे वो PSIT हो, KIT हो और विजन हो, एज एन इंटरव्यूअर जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने कैंडिडेट से, या मैं जिस इंसान को हायर करना चाहती हूँ उसके अंदर जो स्किल्स हैं अगर वो आपके अंदर हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप टायर 3 कॉलेज के हो, टायर 2 कॉलेज के हो. इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ यू हैव good communication skills, then I don't think the college matters. आप देख लो जितने भी लोग हैं, आई थिंक जितने भी फैकल्टीज हैं, दे विल आल्सो अग्री दैट दे जितने भी इंटरव्यूज जितने लोग ने दिए वो कभी नहीं पूछते कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो. Okay, next is, there are so many candidates RNQ. Krishna का question है, there are so many candidates in the RNQ, so why should our organization hire you? Again, why should we hire you is basically कि आपको अपनी इसमें strength बतानी है कि sir, because I think I possess I'm calm in personality, I do work on time, I am very dedicated, I am very hard working. But ये सब आपको एक examples के साथ अगर आप बताओगे कि आपने कभी किसी situation में ऐसा face किया है, so it will be more beneficial for you. So how why should we hire you is basically telling your strength कि हम ऐसे क्यों हम आपको hire करें, आपके अंदर ऐसा क्या है. So you should always be एक आपके पास एक upper hand होना चाहिए. अगर आपने कोई नया skill या कोई नई workshop attend की है, कोई वो attend किया है, seminar attend किया है, वो webinar attend किया है, आप वो भी use कर सकते हो इसमें. इससे basically आप ये बोल सकते हो कि sir, I have all the knowledge, I have all the aspects you are looking for in this job. ऐसे करके you can answer. How I give a better panel interview. Okay, better panel interview. See, whenever we see a panel sitting in front of us, we always get automatically nervous. जब हम देख लेते हैं कि हमारे सामने एक नहीं चार लोग बैठे हैं, तो हम already घबरा जाते हैं. So first and foremost thing, you should greet every panel member. जरूरी नहीं है आप सारे पैनल मेंबर का नाम आपको पता हो, बट इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप सारे पैनल मेंबर्स के आपको नाम पता हो, उनका डेजिग्नेशन पता हो कि वो क्या करते हैं. फॉर पैन इंटरव्यू आप पहले तो अपने आप को काम करिए, ग्रीट एवरीवन. जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वैसा वैसा आप उनको आंसर देते जाओ. ट्राई एंड बी काम, घबराओ नहीं. वो कुछ करेंगे नहीं, इट विल बी वो आपसे क्वेश्चंस ही पूछेंगे, यू नीड टू गिव देम द आंसर्स. ओके, सो दिस वाज इट. किसी और को anybody else who wants to ask any question? Okay, what are your wage expectations or what are your salary expectation, Abhishek?
वेन एवर दिस लाइक मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस आती है, सिंस यू आर फ्रेशर, इवन इफ यूर एक्सपीरियंस दैट द आंसर वुड बी डिफरेंट, बट आप अगर फ्रेशर हो तो यू शुड ऑलवेज से सर माय सैलरी एक्सपेक्टेशन वुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट analysis or the market rate. Currently whatever the market rate is going on, that rate would be suitable for me, and I know it would not be so much less ki I cannot survive. Okay. Okay, any more doubts or any more questions that anyone has to ask? See, salary आप हमेशा उनको अपना एक अमाउंट नहीं बताओगे कि सर माय सैलरी शुड बी 20,000, माय सैलरी शुड बी 30,000. your salary should always be aligned to the market rate. Market rate मतलब बाकी organizations में जो उस प्रोफाइल की सैलरी चल रही है, एंड यू नो इतनी भी कम नहीं देंगे कि आप सर्वाइव ना कर पाओ. यू कैन ऑलवेज ऐड अ लाइन कि सर आई नो द सैलरी वुड नॉट बी so much less that we cannot survive. At least that the amount would be such that we can survive in that situation. Okay. What was the question of peer interview? What was the question of peer interview? Matlab, current, what type of question? How can prepared interview in fresher better technical knowledge? Okay, Pooja, so for better technical knowledge, you should always prepare. Like, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटी टर्म्स जैसे पाइथन, जावा, ये सारी सॉरी so ये सारे टर्म्स से आप you should be aware of it. You can confidently answers. Technical interview is basically um, आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं. उस आपको मतलब आपको सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए जब आप एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बैंक पीओ. बैंक पीओ में देखो, बैंक पीओ के बहुत डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू होते हैं. बैंक पीओ का इंटरव्यू आप अगर यूट्यूब पे देखो तो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होता है. मैंने बताया था अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है. वो जरूरी नहीं है कि एक उनके पास सेट क्वेश्चन है वो वही सबसे पूछते जा रहे हैं. जैसे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला कैंडिडेट देकर आता है मुझको पकड़ के पूछ लेते हैं क्या पूछा था क्या पूछा था, और आप एक्सपेक्ट करते हो फिर आप उसी पैटर्न में आप आंसर रट लेते हो कि उससे पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा है, दूसरा स्ट्रेंथ पूछा है, तो हमसे भी वही पूछेंगे. ऐसा नहीं है. अगर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे पैनल मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं. जैसे सपोज बैंक पीओ का आप जो कह रहे हो, एक बार एक इंटरव्यू में ये हुआ था कि सपोज अ कैंडिडेट, द इंटरव्यू इज ऑन सेकंड फ्लोर और वो ग्राउंड फ्लोर में है. तो वो सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आया, जब वो इंटरव्यू के लिए बैठा तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उससे पूछा गया आउट ऑफ द बॉक्स वाज, आपने कितनी सीढ़ी चढ़ी है. तो जो चढ़ के आ रहा है वो काउंट थोड़ी ना करेगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एग्जैक्ट काउंट करके बताओगे. आपको एक रैंडम नंबर बोलना है कि सर इतनी है, कि ये देखने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है. ओके, so इसलिए होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋतु. A lot of candidates aware and come to prepare this question that why should we hire you? Even the interviewer knows that maybe candidates have been. Okay, maybe candidates have been searching. Okay. So yes, ये ऑब्वियसली बात है कि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, गूगल पे इजीली आंसर अवेलेबल है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिकॉज सब इंडिविजुअल के आंसर्स अलग होंगे, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है ऋतु. आपकी स्ट्रेंथ कुछ और होंगी, सामने वाले की स्ट्रेंथ कुछ और होंगी. तो वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन यू प्रिपेयर फॉर योर बेसिस, कि आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स है या आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो आपको सबसे अलग बनाती हैं, बाकी कैंडिडेट से आप अलग हो. अगर आप इंटरनेट से कॉपी करोगे तो सामने वाले ने भी इंटरनेट से कॉपी किया होगा, तो आप दोनों का सेम आंसर हो जाएगा. बट वेन यू मेक योर आंसर ऑन योर ओन इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट. आप हमेशा जब इसका आंसर दोगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से दोगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती हैं, या मेरे अंदर ये क्वालिटीज है जिनकी वजह से आपको मुझे हायर करना चाहिए. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस?
is technical knowledge important in a panel interview? That depends. If the panel interview is having a technical interview, like जैसे बहुत सारे types of interview I've told in the first place, तो वो कौन सा टाइप ऑफ इंटरव्यू चूज कर रहे हैं इंटरव्यू के टाइम? पैनल इंटरव्यू में है, अगर वो टेक्निकल बेसिस पे चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे। अगर जनरल इंटरव्यू है तो वो वैसा पूछेंगे। तो इट डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन या कंपनी टू कंपनी, वो किस तरह से ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाहती है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर पैनल बैठा है तो वो टेक्निकल इंटरव्यू देगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? I hope through this session you might have learned a lot of things, and I hope that you will apply it also in your in your daily lives. I would request and I would suggest everyone, every students, especially the final year students, to start preparing for the interview, start preparing the common answers of the interview, so that when at the time of facing the interview you can easily complete your interview without any problem. So I think thank you from my side. If you have any question, you can always connect with me. Thank you so much, everyone. So, स्टूडेंट आगे इसकी जो है प्रिपरेशन के लिए आपको आज जितना भी मैम ने बताया है आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए और जो है पूरी तरह से प्रिपेयर होइए इंटरव्यू के लिए। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती है। और आप सभी लोगों को अभी तो कोविड टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे हैं, हो सकता है आपको अभी नेक्स्ट जॉब के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़े, लेकिन अभी आपको आगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कहीं पर तो आपको ये सारा जो भी बताया गया है इसको आप अच्छे से इस तरह प्रिपरेशन करिए इंटरव्यू के लिए। और हम लोग आगे इसी तरह के सेशन और करते रहेंगे। थैंक यू। सोनाली मैम एंड कर दें। आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। क्लाउड पे रिकॉर्डिंग की थी आपने? yes, yes. क्लाउड पे थी? हाँ सर, क्लाउड पे। तो आप स्टॉप कर दीजिए तो हम एंड कर। सर स्टॉप मैं रिकॉर्डिंग आपके में ऑप्शन देगा आ रहा है? नहीं, नहीं सर। अच्छा एक मिनट।